Hello. Hello. Good afternoon, students. Class 11th biology students. Yes, the session is going to start. Class 11th biology students, I welcome you all in this second session of chapter number 5 of your syllabus, Morphology of Flowering Plants. Today on 15th of May 2020. I am Monica Malhotra, PGT Biology from KV Push Vihar, New Delhi. And I am before you to teach chapter number 5, Morphology of Flowering Plants. Okay, so here is a quick recap for the yesterday's session. Yesterday I had started with the chapter and I had taught you about the root system. I hope you all have revised the root system. Yes, yes, very less students are still online. Okay, so now I'm waiting for the responses. Question number 1. Yes, good afternoon to all. Yes, I can see many students are joining in. Veena is there, Anu, Yash, Aryan, Aditi, they all are here. Yes, call your friends, tell them to attend the live session. Although it is not compulsory in vacations, but it is always beneficial. Yes, Aditi, yes, Yash, yes. Okay, so first of all, as always we do, we'll do some quick recap by asking some questions from the yesterday's session. Question number 1. In some plants growing in swampy areas, marshy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards, such roots are called. Now those roots which grow vertically upwards in the trees growing in swampy areas, those roots are called, there was a name given to such roots. Yes, guess the name. You must have revised the topic yesterday. No, this is not the correct answer. Yes, Madhu Manoj has given the correct answer. It is pneumatophores. Very good. So pneumatophores are the correct answer. ठीक है, एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने? राइजोफोरा, जो मार्शी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज में पेड़ उगते हैं, उनके रूट्स वर्टिकली अपवर्ड जमीन से ऊपर आ जाती हैं यू टर्न लेकर, और लेंटिसेल्स नाम के अपर्चर उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं. तो सच रूट्स आर कॉल्ड नेमेटोफोर्स. नेमेटोफोर पी से शुरू होता है, PNEUMATOPHORES. ठीक है, तो इन रूट्स को नेमेटोफोर्स कहते हैं. मैंने आगे आंसर्स लिखे हुए नेक्स्ट स्लाइड में आपके रेफरेंस के लिए, सो डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 2. Yes, Veena is also correct. Nematophores, good. Question 2. The region above the root cap consists of very small cells. Root के regions पढ़ाए थे कल मैंने आपको. उसमें जो region है root cap से just ऊपर, which consists of very small cells, and these cells have dense protoplasm. The region is called dash region of the root. बताओ उस region को क्या बोलते हैं? रूट कैप से जस्ट ऊपर है, छोटे छोटे सेल होते हैं, उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है. क्या बोलते हैं उस रीजन को? Yes, Urvi is correct. Region of meristematic activity. Very good. Yes, others must also try to answer. Yes, आज answers बहुत कम आ रहे हैं बच्चों की तरफ से. Yes, it is the region of meristematic activity. Very good. Yes, Veena is also correct. Meristematic region. Yes. Now we come to third question. The primary roots and its branches constitute the dash. प्राइमरी रूट सिस्टम जो होता है और उसके आगे ब्रांचेस निकलती हैं, जो वो कौन से टाइप की रूट सिस्टम बनाती हैं? यस, यस, यश, अदिति, यू आर करेक्ट. मधु मनोज इज आल्सो करेक्ट. वेरी गुड. मीना रावत, मेरिस्टेमेटिक, बिल्कुल सही है आपका आंसर. अब आप क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ. द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द डैश. डैश मतलब कौन से रूट्स बनाती हैं वो? यस, which type of? Yes, Urvi Udal is again correct. Taproot system is the correct answer. Meena Rawat has also given correct answer. Yash Yadav, Madhu, yes, you all are correct. Taproot system. Primary roots and its branches constitute the taproot system. Yes, Veena, Aryan, सब सही बोल रहे हो. नित्यांजलि, अदिति, बिल्कुल सही. ठीक है, और ये टैप रूट सिस्टम कौन से टाइप के प्लांट्स में मिलता है? डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, डाइकोट प्लांट्स में मिलता है. राइट?
Okay, now question number 4. Monocot plants have dash type of root system. बताओ भाई, मोनोकॉट प्लांट्स में कौन से टाइप का रूट सिस्टम होता है? यस सुजीत, अदिति, बिल्कुल सही, आपने टैप रूट सिस्टम आंसर दिया थर्ड क्वेश्चन का। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दो। यस वंदना, टैप रूट इज करेक्ट फॉर थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है, फोर्थ का आंसर दो अब। Yes, Veena Rai is the first one to answer for the fourth question. Monocot plants have fibrous roots. Rajendra Chaudhary is also correct. Fibrous root system. Urvi बिल्कुल सही. Yes, ठीक है भाई. तो fibrous root system मीना मधु ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा. सभी आंसर्स करेक्ट हैं आपके. ये मैंने करेक्ट आंसर्स यहाँ इस स्लाइड में लिख दिए हैं. ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए. किसी को अगर कोई छूट गया हो, लेट ज्वाइन किया है, तो आप क्वेश्चन विद आंसर यहाँ से देख सकते हैं. Okay, after this we come to the today's session. Yes, Vandana, Virender, नित्यांजलि, बिल्कुल सही बेटा, आपने आंसर दिए, वेरी गुड. चलिए अब आप आ जाइए आज के टॉपिक पे, द स्टेम. जैसे कल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपको सेशन, रूट सिस्टम पढ़ने में मजा आया. आज हम शूट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसका स्टेम, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है ना. सबसे पहले हम स्टेम के बारे में देखें. आप सबको पता है कि स्टेम क्या होता है. ये एक असेंडिंग पाथ है. असेंडिंग मतलब नीचे से बढ़ना शुरू करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है. ठीक है, असेंडिंग पाथ है ये एक्सिस का, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस, इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. सो ये सब चीजें इसमें स्टेम में होती हैं. यू कैन सी ये फ्लावर दिख रहा है आपको. ठीक है, ये इसका ग्रोइंग पॉइंट है. सॉरी, ठीक है, टर्मिनल बड है. इट मे डेवलप इनटू अ रिप्रोडक्टिव बड, इट मे गिव राइज टू अ फ्लावर. ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये टर्मिनल बड है और इसके आसपास ये यंग लीव्स है. ठीक है, ये आपने देखा, ये पॉइंट्स हैं जहां से ब्रांचेस या लीव्स अराइज करते हैं स्टेम से. तो वो पॉइंट जहां से ब्रांचेस अराइज करें या लीव्स अराइज करें, उन्हें बोलते हैं नोड्स. एंड बिटवीन द टू नोड्स इज द इंटरनोड. ये मैंने कल भी सब बताया था आपको, रिवाइज कर रहे हैं आज हम. ठीक है, नाउ यू कैन सी ये एक नोड से एक लीफ अराइज हो गया. ठीक है, ये लीफ की डंडी है, पिटियोल बोलते हैं इसको. हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में चिंता मत करो. ये लीफ लगे हुए हैं इसके ऊपर. ओके, नाउ यहाँ पे जो जोन है, जब ये लीफ मेच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से टूट के स्टेम से नीचे गिर जाते हैं. तो ये जो रीजन होता है जहां से लीफ टूटता है, उस रीजन को, उस लेयर को क्या बोलते हैं? एब्सिजन लेयर. ये भी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. एक्चुअली ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एब्सिजन लेयर है ये, एब्सिजन लेयर. यहाँ से टूट के पत्ता जब मेच्योर हो जाता है, येलो हो जाता है, तो वो नीचे गिर जाता है. राइट, तो यहाँ से एक तरह से डीजनरेशन शुरू हो जाती है. पिट्योल यहाँ से डिटैच हो जाता है मेन स्टेम से और पत्ते को नीचे गिरा देता है. ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि स्टेम के और क्या फीचर्स हैं. स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड. एक सीड जब सीड को पानी मिलता है, वो जर्मिनेट करता है, उसको सही कंडीशंस मिलती हैं, अ सीड जर्मिनेट्स. तो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, आप सबको पता है. वो एम्ब्रियो ग्रो करता है. दैट एम्ब्रियो गिव्स राइज टू टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. वन इज वर्टिकली अपवर्ड्स, वन इज डाउनवर्ड्स. जो नीचे की तरफ से निकल रहा है वो रेडिकल है, रूट सिस्टम बनाएगा, जिसके बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ा. और जो ऊपर की तरफ निकल रहा है एम्ब्रियो से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे प्लूम्यूल कहते हैं. PLUMULE, प्लूम्यूल. आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. एंड दैट प्लूम्यूल गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम. ठीक है, तो ये स्टेम कहाँ से अराइज हुआ है? ये प्लूम्यूल से अराइज हुआ है. ठीक है, सो द स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड. द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. आपको बता ही दिया मैंने नोड्स क्या होती हैं. जहां से लीफ या ब्रांच अराइज करे, दैट इज नोड. ये एक नोड है, ये भी एक नोड है. और दो नोड्स के बीच का ये इतना सारा डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स, इट इज इंटरनोड. ओके, चलिए. The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portions between the two nodes. Now the things are clear to you. Now the stem also bears buds. Stem में buds भी लगती हैं, जो कि टर्मिनल लोकेशन पे हो सकती है या एक्सिलरी लोकेशन पे हो सकती है. देखिए हम ये क्या होती है, कल भी बताई थी वैसे मैंने आपको. ये देखो, ये मेन स्टेम है और ये ब्रांच या लीफ है. ठीक है, तो ये स्टेम और ये ब्रांच के बीच में एक एंगल बनता है. दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सिल. क्या बोलते हैं इसको? एक्सिल. AXIL, एक्सिल. इस एक्सिलरी एंगल से जो भी बड अराइज करती है, इस एक्सिलरी लोकेशन से जो भी बड अराइज करती है, उसको कहते हैं एक्सिलरी बड. सो दिस इज द एक्सिलरी बड, राइट? बट द बड विच अराइजेस फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम की टिप से अराइज करती है जो, उसे बोलते हैं टर्मिनल बड. So axillary bud and terminal bud is the classification of buds according to their location, okay, on the stem.
ओके, स्टेम जनरली ग्रीन होता है, हमें पता है हर्ब्स का स्टेम ग्रीन होता है, रनर्स का ग्रीन होता है ना। श्रब्स में धीरे धीरे वुडी होना शुरू हो जाता है, और ट्रीज में बहुत ही ज्यादा वुडी स्टेम होता है। स्टेम जब भी यंग होता है इट इज ऑलवेज ग्रीन, ठीक है, एंड लेटर इट बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन इन केस ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ स्टेम्स। आई थिंक ये सब आपको पहले से ही पता होंगे, ये सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हैं, राइट? अब हम उन फीचर्स पे चलते हैं जो आपको पहले शायद नहीं पता होंगे। चलिए अब हम पहले फंक्शंस की बात कर लेते हैं स्टेम की। द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। इसका काम क्या है? स्टेम अपने ऊपर लीव्स बियर करता है, फ्लावर्स बियर करता है, फ्रूट्स बियर करता है, और ब्रांचेस को स्प्रेड करता है अपने ऊपर, ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए पेड़ का। पेड़ जब ग्रो करता है उसका साइज बढ़ता है, तो स्टेम सपोर्ट्स द ग्रोइंग ब्रांचेस, राइट? इसके अलावा स्टेम के अंदर आप सबने 10th क्लास में भी पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यूज होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना प्लांट के अंदर, और फ्लोएम का काम होता है सोल्यूट्स यानी कि फूड को ट्रांसलोकेट करना प्लांट के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेट्स क्या होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट से बने। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट से प्लांट में क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को कंडक्ट करने का काम कौन करता है? स्टेम। पानी, मिनरल्स, फोटोसिंथेट्स यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स, इन सबको कंडक्ट कौन करता है? स्टेम कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेम के थ्रू होती है, राइट? सम स्टेम्स परफॉर्म दीज एडिशनल फंक्शंस आल्सो। ये तो रेगुलर फंक्शन है हर एक स्टेम का। इसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शंस कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में स्टेम्स परफॉर्म करते हैं। दोज एडिशनल फंक्शंस आर स्टोरेज ऑफ फूड। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, पोटैटो, है ना। मैंने बताया था पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, ये अपने अंदर फूड को स्टोर करता है, और यही स्टोर्ड फूड आप खाते हो जब इसकी सब्जी बना के खाते हो, राइट? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कई स्टेम्स मॉडिफाई होके वीक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कई स्टेम्स जो है प्लांट का प्रोटेक्शन करने का काम भी करते हैं, और कई स्टेम्स प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे? जैसे रूट, जैसे स्टेम कटिंग, रोज प्लांट का प्रोपेगेशन कैसे होता है? थ्रू स्टेम कटिंग। तो ये एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एडिशनल फंक्शंस ऑफ द स्टेम। ओके, सो टुडे द मेन टॉपिक इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम किस तरह से मॉडिफाइड होता है, कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस है स्टेम की। हम नॉर्मली जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि किसी भी प्लांट में जमीन के नीचे के पार्ट को बोलते हैं रूट, और जमीन के ऊपर वाला पार्ट जो होता है स्टेम होता है, ठीक है। लेकिन आज आपको एक नई बात बताने जा रही हूं मैं, कि स्टेम बहुत तरह से मॉडिफाइड है। स्टेम में बी अबव द ग्राउंड। अगर स्टेम अबव द ग्राउंड है तो एरियल स्टेम कहलाता है। आधा जमीन से ऊपर आधा जमीन के नीचे है, कहीं कहीं जमीन के नीचे दबा हुआ है, तो उसे सब एरियल कहते हैं। सब एरियल स्टेम हो गया वो। और अगर स्टेम पूरी तरह से जमीन के नीचे है, इफ इट इज टोटली अंडर द ग्राउंड, देन इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। So on the basis of its position above the ground or below the ground, the stem can be classified into three types: underground stem, below the ground, subaerial stem. It is near the ground and somewhat its some portions may be slightly under the ground also. अपर मोस्ट स्ट्रेटा जो सॉइल की होती है उसके नीचे दबा हुआ हो सकता है ये। लेकिन एरियल स्टेम वो होता है जो पूरा जमीन के ऊपर होता है, इट इज टोटली इन द एयर। ओके, तो तीन तरह के स्टेम होते हैं, और अब इनकी मॉडिफिकेशंस के नाम भी इनके हिसाब से है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस आर इन दो स्टेम्स व्हिच आर फाउंड अंडर द ग्राउंड. सब एरियल मॉडिफिकेशंस आर फाउंड इन द स्टेम्स व्हिच आर नियर द ग्राउंड एंड समवhat beneath them. Aerial modifications are in those type of stems which are totally above the ground. अब हम मॉडिफिकेशंस के नाम पढ़ते हैं, आज मैं इन्हीं की डिटेल आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, ये तो सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप रोज खाते हैं इनको, राइट? जिंजर, गार्लिक, अनियन, कोलोकेशिया, पोटैटो, ये सब खाते हो आप, है ना? ये सब आप खाते हो, तो ये सब जो है दीज आर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, राइट? सबसे पहले हम इसमें इनको एक एक करके पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको एक चार्ट पूरा एक बार बता दूं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में क्या क्या आते हैं? राइजोम, राइजोम इट्स अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसका एग्जांपल है जिंजर। तो जिंजर का जो को हम एक कैटेगरी में डालते हैं वो है राइजोम, ठीक है।
अनियन और गार्लिक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका, उसको हम बोलते हैं बल्ब। ओके, कोलोकेशिया, अमोर्फोफेलस, ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं हम कॉर्म। पोटैटो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं ट्यूबर। ओके, ये चारों ही अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम की। नाउ सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशंस में क्या क्या आते हैं? रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, ये चारों आपके सिलेबस में है, ये सब कुछ सिलेबस में है आपके। सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले रनर, साइनोडॉन, क्या होती है कल बताई थी, लॉन ग्रास, जो घास आपके लॉन में उगती है, साइनोडॉन। ठीक है, इसके बारे में बताया था इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि रनर वही है घास। सकर, क्राइसेंथेमम, म्यूसा, ये फ्लावर्स आपने देखे होंगे, ये सकर्स हैं, सकर की कैटेगरी में आते हैं। जास्मीन, कोलोकेशिया, ये स्टोलन्स फॉर्म करते हैं। पिस्चिया, इशोर्निया, ऑफसेट्स फॉर्म करते हैं। रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, दीज आर सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। देन वी कम टू एरियल मॉडिफिकेशंस। टेंड्रिल्स देखे होंगे आपने कई स्टेम्स में, ठीक है, ये पैसिफ्लोरा में होते हैं जैसे, ये दीज आर एरियल मॉडिफिकेशंस। थॉर्न्स देखे हैं आपने, ठीक है, ये सब ये भी एरियल मॉडिफिकेशन है। फाइलोक्लेट ओपनशिया में पाया जाता है, ये कॉमन है, बड़ा आपको मालूम है, ये भी इनके बारे में सब बताऊंगी, चिंता मत करो। तो फाइलोक्लेट इज अगेन एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्लैडोड इज अगेन एरियल मॉडिफिकेशन। बल्बिल इज आल्सो एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, इनका डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, क्लैडोड बल्बिल, लेकिन इनका नाम है, इसीलिए मैं ये आपको जरूर बताऊंगी। और प्रैक्टिकल के सिलेबस में ये दोनों चीजें हैं, इसीलिए आपको ये जाननी बहुत जरूरी है, राइट। सो these all are the modifications of stem. अब वन बाय वन हम इन modifications को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड स्टेम जो आप खाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। Stems are modified to perform different functions. सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं। ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम्स है, देखो, ठीक है, ये आलू है, ये क्या है, ये प्याज है, ये गार्लिक है, ये जिंजर है, ये जिमीकंद है। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, अंडरग्राउंड स्टेम के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस है। एक एक करके देखते हैं आप इन्हें। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमिकन, कोलोकेशिया, हल्दी है ये, they are modified to store food in them, इन सभी के अंदर खाना स्टोर्ड होता है। so these all are underground stem which are modified to store the food, इसीलिए हम इन सबको खाते हैं क्योंकि इनके अंदर खाना स्टोर्ड होता है और वही खाना हम खाते हैं। ठीक है, they also act as organ of perennation to tide over the conditions unfavorable for growth. ये जितने भी है जनरली ये बाइनियल होते हैं, ठीक है, ये 2 सीजन्स में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, या ये पेरिनियल होते हैं, यानी कि पेरिनेशन का मतलब क्या है, जब भी एक सीजन में ये उगते हैं और इनका अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो उन अब अनफेवरेबल कंडीशंस को विथस्टैंड करने के लिए दे स्टोर द फूड इन देम, और वो प्लांट को जिंदा रखते हैं, क्योंकि प्लांट में, अब देखो, जो प्लांट का स्टेम है उसने ही फूड को अपने अंदर स्टोर कर रखा है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अगर प्लांट के लीव्स नहीं भी फोटोसिंथेसिस कर पाते, देन फूड इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द स्टेम। ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशंस को ये टाइड ओवर कर जाते हैं, उनको विथस्टैंड कर जाते हैं, उसमें इनका गुजारा चल जाता है, एंड दे कंटिन्यू द ग्रोथ इन द नेक्स्ट फेवरेबल सीजन। So this is how the underground stems help the plant to withstand the unfavorable conditions. Okay? अब देखिए एक एक करके देखते हैं हमें कैसे पता चला कि ये स्टेम है। कोई तो इनमें कारण होगा ना, अगर हम इन्हें कैसे पहचानेंगे ये मॉडिफाइड स्टेम है। ये इनमें से कोई भी आपको स्पॉटिंग के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकता है, या थ्योरी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट ट्यूबर्स और बल्ब्स ऑफ अनियन दे आर मॉडिफाइड स्टेम, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कौन सा फीचर आपको ये बताता है कि स्टेम है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये जो इससे धागे निकल रहे हैं नीचे आलू से, ये तो इसकी रूट है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा मॉडिफाइड स्टेम है, इसमें से ये एरियल स्टेम निकल रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको छोटी छोटी आईज दिखती है, यहाँ नहीं दिखा रखी है, आपकी बुक में होंगी ये। ठीक है, ये देखो, ये स्टेम से आगे शूट निकल गई, ये ग्राउंड से ऊपर चली जाएगी और ये नॉर्मली ग्रो करेगी किसी प्लांट की तरह। अब ये आलू में छोटे छोटे आपको ये डिप्रेशंस दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द आईज ऑफ द पोटैटो। क्या होती है ये आईज, यहाँ पे भी एक आई रही होगी, यहाँ पे जैसे देयर मस्ट बी आई ऑफ पोटैटो, जो यहाँ दिख नहीं रही है अब क्योंकि इसमें से स्टेम निकल गया है। ठीक है, तो ये जो आईज होती है, ये असल में क्या होता है, ये पोटैटो की नोड्स होती है, राइट, दीज आर द नोड्स ऑफ द पोटैटो। और आपको पता है नोड्स क्या होता है, स्टेम पे नोड वो रीजन होता है जहां से क्या निकलता है, कोई ब्रांच निकलती है या लीफ निकलता है। सो फ्रॉम दीज नोड्स, दीज
stems they arise, the new plants they arise. Okay, so because this tuber of potato consists of nodes in the form of eyes, then it is a modified stem. अब ये क्या है, बल्ब्स की कैटेगरी आ गई, ठीक है। बल्ब में देखो क्या हो रहा है, ये अनियन है, ये गार्लिक है। इसमें आप देख रहे हो कितने सारे लेयर्स होती हैं, जब अनियन छीलते हैं तो कितनी सारी लेयर्स निकलती हैं इसकी, क्या होती है वो, दोज आर द स्केल लीव्स। ओके, दोज आर फ्लैशी स्केल लीव्स। ऐसे ही गार्लिक पे भी इसकी जो अलग अलग ये हम निकाल के इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके सिंगल यूनिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं, ठीक है। नीचे इनका एपेक्स है, ये डिस्क है जो, ठीक है, डिस्क एपेक्स पे लगी हुई होती है और इस डिस्क से निकलती हैं इनकी एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज अ स्टेम व्हिच कंसिस्ट ऑफ लीव्स ओवर इट, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनमें फ्लैशी स्केली लीव्स हैं, इससे पता चला कि ये स्टेम है। तो स्टेम जो कितना राउंडेड बल्बस सा स्टेम होता है, इसको हम बल्ब कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिक मतलब इसका कवर, दोनों बल्ब्स में आप देखते हो ऊपर एक छिलका होता है, वो इसका ट्यूनिक है, उसका कवर है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम आ गए जिंजर के ऊपर। जिंजर इज अनदर टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम व्हिच इज कैटेगराइज्ड एज राइजोम। राइजोम कहते हैं इसको हम। इसके ऊपर भी देखिए, ये स्केल लीव जो धारियां होती हैं इसके ऊपर, दोज आर द स्केल लीव्स। स्केल लीव्स तो आपको पता है, लीव तो स्टेम के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे बड्स भी अराइज होती हैं, ठीक है। देन नोड्स आर देयर, राइट। अब ये देखिए, ये दो नोड्स हैं और नोड्स के बीच में जहां से बड अराइज होती है वो एक नोड है, राइट। और दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इंटर नोड्स। ओके, यहाँ से देखो ये एक नया प्लांट निकल गया है, बर्ड हैज डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट, एरियल प्लांट। ये जमीन से ऊपर जाएगा, इट विल गिव राइज टू ग्रीन लीव्स एंड इट विल डेवलप नेचुरली लाइक अ प्लांट, ठीक है। और ये जो है इसका जिंजर, ये ग्राउंड के नीचे रहेगा, इट विल कीप द फूड स्टोर्ड इन इट, ठीक है। ऐसे ये कॉम है, कॉम में भी आप देख सकते हो ये नोड्स है, ठीक है। दो नोड्स के बीच में इंटरनोड है, ये स्केल लीव्स डेवलप हो रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये नीचे जो धागे निकलते हैं इसके, दीज आर द रूट्स। ऐसे यहाँ से भी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। तो ये सब अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो मॉडिफाई हो गए हैं फूड की स्टोरेज के लिए। ओके, चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं स्टेम टेंड्रिल पे, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल क्या हो गया भाई, अब हम कौन सी बात पे आ गए, सेकंड पॉइंट पे आ गए हम। अब हम सब एरियल स्टेम्स पे आ गए। ओके, सब एरियल स्टेम में सबसे पहले हम स्टेम टेंड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम टेंड्रिल्स कहाँ से अराइज करते हैं, स्टेम से ही अराइज करते हैं। देख रहे हैं आप, ये एक वीक स्टेम है। इट कैन बी वाटरमेलन, वाटरमेलन का स्टेम हो सकता है, पंपकिन का स्टेम हो सकता है, कुकुम्बर का स्टेम हो सकता है, ग्रेप वाइन्स हो सकती हैं, है ना। ये सभी के स्टेम्स जो हैं, देखो पंपकिन कितने बड़े बड़े होते हैं, वाटरमेलन भी कितने भारी होते हैं, खीरे कुकुम्बर भी कितने भारी होते हैं, लेकिन उनके स्टेम्स बहुत ही पतले और वीक होते हैं, ठीक है। इन स्टेम्स को ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, सनलाइट की तरफ जाने के लिए, दे हैव टू टेक सम सपोर्ट। ओके, बैम्बू की स्टिक लगाते हैं हम अपने गार्डन में इनको सपोर्ट देने के लिए, या फिर ये नेचुरली अगर जंगल में उग रहे हैं, कोई वाइल्ड एरिया में उग रहे हैं, तो अपने पास के पेड़ से या किसी बुश से या किसी श्रब से ये सपोर्ट ले लेते हैं, राइट। तो देखिए, ये एक वीक स्टेम है, सपोज ये पंपकिन का स्टेम है, पंपकिन या वाटरमेलन का स्टेम है। तो अब देखिए, ये वीक स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आप ये देख रहे हो, ये इसका स्टेम है और ये इसका लीफ है। मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेम और लीफ के बीच में एक एंगल होता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सिल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिल, ठीक है। दिस इज द स्टेम, दिस इज द लीफ एंड हियर इज द एक्सिल, राइट। और एक्सिल में एक बड होती है, एक्सिलरी बड्स, राइट। तो जब एक्सिलरी बड डेवलप हो जाए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट देने का काम करे किसी प्लांट के वीक स्टेम को, तो उस एक्सिलरी बड के एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, स्टेम टेंड्रिल। समझ में आया, स्टेम टेंड्रिल डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बड, दे आर सिलेंडर इन शेप एंड दे आर स्पाइरली कॉइल्ड। देखो सिलेंड्रिकल है ये और स्पाइरली कॉइल्ड हो गए हैं, क्योंकि इनको कॉइल करके पकड़ बनानी है किसी सपोर्ट के साथ। ओके, दे हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब सच एज गार्ड्स, ठीक है, बिटर गार्ड, करेला, बॉटल गार्ड, ठीक है, इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, दीज आर प्रेजेंट, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन सब में होते हैं ये, ठीक है। इवन इन ग्रेप वाइन, इन सब के अंदर स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं। समझ में आ गया आपको। तो स्टेम टेंड्रिल आपको कोई पूछे क्या होता है, ये एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि एक्सिलरी बड स्टेम से ही अराइज हो रही है, सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ
स्टेम, राइट। स्टेम टेंड्रिल के बाद नेक्स्ट हम थॉर्न पे आ जाते हैं, ठीक है। ये थॉर्न्स भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड स्टेम है। सिट्रस, इसे हम कॉमनली खट्टा कहते हैं, सिट्रस फ्रूट होता है ये। दुरांता, ठीक है। देन बोगनविलिया, दुरांता की हम वो लगाते हैं, हेज लगाते हैं अपने घर के आसपास, ठीक है। देन बोगनविलिया, सबने देखा होगा, बड़े कलरफुल लीव्स होते हैं इसके, जिनको हम मिस्टेक कर जाते हैं कि वो फ्लावर्स हैं, वो असल में इसके लीव्स होते हैं। ओके, तो ये इन सभी में थॉर्न्स पाए जाते हैं। अब आपको बड़ी कमाल की सिमिलैरिटी दिखाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो स्टेम टेंड्रिल था वो भी एक्सिलरी बड से डेवलप हुआ था, है ना, और बहुत ही सॉफ्ट टेंड्रिल था, सिलेंड्रिकल शेप में। वो भी एक स्टेम की मॉडिफिकेशन थी, एक्सिलरी बड से ही अराइज हुआ था। अब यहाँ जो थॉर्न्स हैं ये भी एक्सिलरी बड से ही डेवलप हुए हैं। देखो, ये देखो कितना कमाल की बात है। ये स्टेम है, ये स्टेम का लीफ, और इसमें ये जो एंगल है ये एक्सिल है, इसमें जो बर्ड बनी एक्सिलरी बर्ड, उसी एक्सिलरी बर्ड से मॉडिफाई होकर थॉर्न्स बन गए। देखो यहाँ पे भी एक्सिलरी बर्ड ही डेवलपिंग इनटू थॉर्न, राइट। यहाँ पर भी वही है, एक्सिलरी बर्ड इज डेवलपिंग इनटू अ थॉर्न। सो थॉर्न्स आर ऑलवेज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक्सिलरी बर्ड. That is why these are called stem modifications. Okay. Axillary bud of stems may also get modified into woody, straight, and very pointed thorns. Thorns are found in many plants like citrus, bougainvillea. काम क्या है thorns का? They protect the plant from browsing animals. जो जानवर जो है प्लांट्स को के लीव्स को खाने के लिए आते हैं, ये थॉर्न्स इन प्लांट्स में जानवरों को नहीं आने देते। इन प्लांट्स में जो ये थॉर्न्स हैं, दे सेव द प्लांट फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। दे डू नॉट let the animals to eat the leaves, because whenever the animal comes to eat the leaf, it is pierced with this thorn. So animals, they just remain away from such plants which are having the thorns, right? तो thorns एक तरह से इनके प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स हैं, these are the प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स, ये इनका डिफेंस है। चलिए थॉर्न्स भी समझ आ गया। अभी तक मैंने क्या बताया, अंडरग्राउंड स्टेम बताए थे आपको, जिनमें ये सब बताया था, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम एंड कॉम, ठीक है। ये पहली कैटेगरी थी मॉडिफाइड स्टेम की। दूसरी कैटेगरी है सब एरियल स्टेम्स। ओके, सब एरियल स्टेम्स, देखिए मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं जरा। ओके, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हमने पढ़े राइजोम, बल्ब, कॉम और ट्यूबर। सब एरियल मॉडिफिकेशंस हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम एरियल मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं, टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेट, क्लैडोड एंड बल्बिल, ठीक है। ये थोड़े से मिक्स हुए पड़े हैं, इसलिए आपको मैं बता दूं, अभी तक जो हमने टेंड्रिल, थॉर्न पढ़े हैं वो तो एरियल मॉडिफिकेशन है। इसके बाद फाइलोक्लेट, क्लैडोड और बल्बिल हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट विल रीड स्टडी अबाउट द सब एरियल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। आपको मैं हर एक मॉडिफिकेशन के टाइम पे बता दूंगी ये कौन सी है। ये आपकी बुक में भी इस तरह से कैटेगराइज नहीं है, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल, इसीलिए ये बहुत हैपेजर्डली दी हुई है बुक में। सबसे पहले अंडरग्राउंड पढ़ी हमने, ये एरियल मॉडिफिकेशंस है, स्टेम, टेंड्रिल, थॉर्न्स, ये भी एरियल है क्योंकि हवा में होती है, ये जमीन के पास नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलोक्लेट की। ये भी क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन है क्योंकि हवा में है, ये देखो ग्राउंड के बिल्कुल पास नहीं है। Now next is phylloclate, ठीक है। Phylloclate again it is aerial modification, right? अब aerial modification of stem में phylloclate क्या होते हैं? These are flattened and fleshy stems. क्या होते हैं ये? Flattened and fleshy stems. आपने ओपनशिया तो देखा ही होगा, यूफोर्बिया भी देखा है ना। इन सब में आपने देखा है कि ये जो है असल में, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये क्या है? दीज आर द स्टेम्स। ये बहुत ही फ्लैशी होते हैं, फ्लैट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। दीज आर कॉल्ड फाइलोक्लेट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? फाइलोक्लेट बोलते हैं। सो इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स, एरिड कौन से होते हैं? डेजर्ट रीजन, ठीक है, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी निग्लिजिबल है। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, दे मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड, फ्लैशी एंड फ्लैट स्ट्रक्चर्स। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर किसमें पाए जाते हैं? ओपनशिया में। फ्लैशी किसमें पाए जाते हैं? यूफोर्बिया में, ठीक है। ग्रीन कलर के हो जाते हैं ये स्ट्रक्चर्स, फ्लैट हो जाते हैं एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेम। ग्रीन है इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल कंटेंट आ गया है और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर स्टेम फोटोसिंथेसिस करेंगे तो लीव्स क्या करेंगे? हियर द लीव्स दे बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। ये स्पाइंस में बदल जाते हैं, क्यों? क्योंकि लीव्स जो है यही वो ऑर्गन है जहां से वाटर का लॉस होता है। दे अंडरगो ट्रांसपिरेशन, और डेजर्ट में आपको पता है ट्रांसपिरेशन इज अ, इट विल बी वेरी कॉस्टली, ठीक है। अगर ये ट्रांसपायर कर जाएंगे लीव्स
तो पानी का लॉस हो जाएगा यहाँ से, और पानी की अवेलेबिलिटी तो है नहीं प्लांट को, इसीलिए वो पानी का लॉस ना कर पाए लीव्स, इसीलिए लीव्स मॉडिफाई हो गए हैं स्पाइन्स में, इनका सरफेस एरिया बहुत रिड्यूस हो गया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर नो मोर एबल टू लूज वाटर। और लीव्स का काम फ्लैटन स्टेम करते हैं, ठीक है, ये अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट को भी रिटेन करते हैं, राइट। सो दीज ऑल आर द डेजर्ट अडेप्टेशंस, एडेड अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्टेम फ्लैट हो गया है, फ्लैशी हो गया है, ग्रीन हो गया है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, फाइलोक्लेट्स, इसे बोलते हैं फाइलोक्लेट, ठीक है। these phylloclades contain chlorophyll and carry out photosynthesis। तो अभी तक मैंने आपको 3 aerial modification stems की बताई। पहली stem tendril, it is an aerial modification of stem. Thorns, again an aerial modification of stem, and phylloclade, it is again an aerial modification of stem, okay। अब इसके बाद हम बाकी की एरियल मॉडिफिकेशन भी पहले कर लेते हैं। दिस इज द थर्ड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, क्या नाम है इसका, क्लैडोड, ठीक है। ये आपकी बुक में इसका डिटेल नहीं है, मैंने ऐड किया है इसको, ठीक है, लेकिन नाम है आपकी बुक में और प्रैक्टिकल के सिलेबस में है ये। तो क्लैडोड, क्लैडोड क्या है, क्या होता है क्लैडोड, इट्स अ फ्लैटन्ड स्टेम और इंटरनोड्स दैट रिजेंबल्स एंड फंक्शंस एज अ लीफ, ठीक है। ये एक स्टेम है जो फ्लैट हुआ हुआ है, या फिर इंटरनोडल पार्ट भी फ्लैट हो सकता है, जो कि बिल्कुल लीफ जैसा ही दिखाई देता है और लीफ का ही फंक्शन करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रस्कस एंड एस्पैरागस। रस्कस में आप देख सकते हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन असल में ये लीफ नहीं है, ये काम जरूर कर रहा है लीफ का, लेकिन लीफ नहीं है ये, इट इज अ क्लैडोड, राइट। सिमिलरली एस्पैरागस में ये देखो आपको लीफी स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर क्लैडोड्स। तो भाई इनके लीफ कहाँ है फिर, ये देखिए, ये स्टेम के ऊपर आपको एक छोटा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द स्केल लीव्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ स्टेम पे आपको ये छोटा सा ये हुक के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हुक्ड लीफ है, राइट। दीज आर द रिड्यूस्ड लीव्स ऑफ द, बिकॉज दीज आर ऑल्सो, ये जो इनके जो लीव्स हैं ये बहुत ही रिड्यूस्ड है, और इनमें जो स्टेम होता है यही अपने आप को मॉडिफाई करता है और ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया क्लैडोड क्या है, क्लैडोड आर द फ्लैटेंड स्टेम्स, और दे मे बी इवन द फ्लैटेंड इंटरनोड, इंटरनोड भी हो सकती है फ्लैट हुई हुई, ठीक है, जो कि लीफ जैसी अपीयर करती है और लीफ का ही काम करती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करती है। ये रस्कस और एस्पैरागस में क्लैडोड पाए जाते हैं, राइट। bulbils, this is again an aerial modification of stem, bulbil। bulbil क्या है, ये देखिए अगेव प्लांट में पाई जाती है bulbil, ये है bulbil, ठीक है। ये क्या है भाई, bulbil देखो क्या है, इट इज, ये स्टेम है इसका और ये लीफ है ना। मैंने क्या बताया कि स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल पाया जाता है, वहां पे जो बड होते हैं वो ऑक्सिलरी बड है, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी बड ही होती है, ये वेजिटेटिव नेचर की होती है, इसे bulbil कहते हैं। ये bulbil, it can give rise to a new plant, ठीक है। So it is a vegetative structure here, it helps in vegetative reproduction। एगेव oxalis इन प्लांट्स में पाई जाती है, ये लीफ है एगेव का, और इसकी एक्सिलरी लोकेशन पे एक एक्सिलरी बड उग गई है, दिस बड विल डिटैच फ्रॉम हियर, इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू एगेव प्लांट। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड है, राइट। तो मैंने आपको 5 एरियल मॉडिफिकेशंस बताई अभी तक, ठीक है। 5 एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बाद अब हम आ जाते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पर, राइट। सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, जिनमें रनर्स आएंगे, स्टोलन्स आएंगे, सकर्स आएंगे, ठीक है, ऑफसेट्स आएंगे, ठीक है, ये सब इसके अंडर आएंगे। सो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू रनर्स। रनर्स के बारे में बात करते हैं, रनर्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वैसे मैं फिर से बता रही हूँ, ग्रासेस के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। रनर्स आर अंडरग्राउंड स्टेम्स of some plants such as grass and strawberry। स्ट्रॉबेरी प्लांट में ऐसा होता है, ग्रासेस हमने देखी, लॉन ग्रास, ये साइनोडॉन, ये डायग्राम पहले भी दिखाया हुआ मैंने आपको। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ ये एक प्लांट है और इसमें ये नोड से अपने एक लेटरल ब्रांच अराइज करता है, ठीक है। ये दूसरी नोड है इसकी, और दो नोड्स के बीच में इंटरनोड, हर एक नोड से जमीन में ब्रांचेस, ये रूट के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, फाइब्रस रूट डेवलप हो जाती है और ऊपर इसके ये शूट है, ठीक है।
फिर ये इंटरनोड आई, ये नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड से ये फाइब्रस रूट डेवलप हो गई जमीन के नीचे और ये शूट है। तो इस तरह से ये आगे आगे अगले रीजन में फैलता जाता है। इट इज अ रनर, ठीक है। इसे प्रोस्ट्रेट स्टेम कहते हैं। प्रोस्ट्रेट मतलब जो हॉरिजॉन्टल हो, विच इज लाइंग पैरेलल टू द ग्राउंड, ओके। एंड द ब्रांचेस एंड शूट आर एरियल, राइट। लीव्स ग्रीन होते हैं, ये भी एरियल होते हैं, लेकिन जो स्टेम है वो कैसा है, दैट इज प्रोस्ट्रेट और दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड and somewhat it is under the top layer of the soil. So that is a underground stem, right? Runners are the first example of underground stem. ओके जब पुराना पार्ट जो है इसका, ये पुराना प्लांट जो है वो मर जाता है, तब तक ये और नई लोकेशंस पे फैल चुका होता है और वहां से नए प्लांट डेवलप हो चुके होते हैं। सो दिस वे द ओल्ड ग्रासेस दे कीप डाइंग एंड इट गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स ऑफ द ग्रास, ओके। नेक्स्ट इज स्टोलन। स्टोलन इज मिंट और जैस्मीन, ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल है। मिंट आप सबने देखा होगा, पुदीना, उसमें ऐसा होता है। उसमें क्या है, जो ये मेन प्लांट है, ठीक है, और मेन प्लांट में एक लेटरल ब्रांच राइज होती है, देख रहे हैं आप, दिस इज अ लेटरल ब्रांच, ठीक है। तो एक ब्रांच राइज होती है लेटरल साइड से, और वो ब्रांच थोड़ी दूर तक हवा में उगती है, मतलब एरियल रहती है, जमीन से ऊपर रहती है, और कुछ समय के बाद जाके डाउनवर्डली ग्राउंड को टच कर लेती है। देखो एक आर्क बना रही है ये। This is a lateral branch which grows above the ground, makes an arc and touches the ground. And the point where it touches the ground, the roots appear and aerial shoot also appears. So it gives rise to a new daughter plant. ठीक है, इस तरह से जो एरियल ब्रांच नेक्स्ट प्लांट को जनरेट करती है, इसको बोलते हैं स्टोलन, ओके। In plants like mint and jasmine, a cylinder lateral branch arises from the base of the main axis. ये main axis का base है, यहाँ से lateral branch arise की, ठीक है। And after growing for some distance aerially, कुछ देर ground से ऊपर उगने के बाद, it arcs down, ये नीचे की तरफ एक arc बनाती है, touches the ground and develops into a new plant. This type of lateral branch is called a stolon. It is found in mint and jasmine. And this is the way how this plant grows and spreads forward. नई लोकेशंस पे ऐसे स्प्रेड होता है ये, ठीक है। स्टोलन के बाद हम ऑफसेट पे आ जाते हैं। दिस इज अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ऑफसेट का बहुत कॉमन एग्जांपल है पिस्टिया एंड इशोनिया, ठीक है। इशोनिया सबको पता होगा, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीड, एक्वाटिक वीड है ये, ठीक है। वाटर हाइसिंथ कहते हैं इसको, ओके। टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसको। इट्स अ वेरी फेमस सी वीड इशोनिया, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं इसके, ऐसा बहुत ब्यूटीफुल बुके की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट दिस इज अ वेरी डेडली वीड, बहुत ही डेंजरस वीड है, जो बहुत जल्दी वाटर बॉडीज को एक्वायर कर लेता है और वहां की एक्वाटिक लाइफ को डैमेज कर देता है। ओके, अब इसके बारे में कुछ आगे जानते हैं। इस टाइप के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं ऑफसेट्स। इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये इसी तरह है, देखिए इसके पिछले तरीके से ही। यहाँ देखो स्टोलन में क्या हुआ था, एक लेटरल ब्रांच राइज हुई थी, उसने नया डॉटर प्लांट बनाया था ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है। यहाँ ये मेन प्लांट है, इसमें से एक लेटरल ब्रांच राइज हुई। ये लेटरल ब्रांच में आगे जाकर क्या हो जाएगी, देखो ये इसकी नोड है, प्लांट की नोड है, ठीक है। नोड से आगे एक लेटरल ब्रांच राइज हुई एंड इट हैज गिवन टू अनदर, ये नेक्स्ट प्लांट उग गया उससे, ठीक है। और जो नोड होती है, ध्यान से देखिए, ये जो प्लांट की नोड है, उससे ये नीचे रूट्स भी राइज हो जाती है, नीचे की तरफ रूट्स राइज होती हैं, और उसी नोड से एक पूरा बंच निकलता है लीव्स का। इट्स अ ग्रुप ऑफ लीव्स, ठीक है। जब लीव्स इस तरह से गुच्छे में एक ही पॉइंट से अराइज हो जाते हैं, पूरा बंच बना देते हैं, तो उस अपीयरेंस को, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रोजेट। क्या बोलते हैं, रोजेट। देख रहे हैं आप, this is a rosette, rosette, rosette. So this group of leaves, this bunch of leaves arising from a common point, these are called rosette. A lateral branch with short internode, देखो ये internode कितनी short internodes होती हैं इसकी। they A lateral branch with short internode and each node bears a rosette. तो एक rosette leaves का हर एक node से appear होता है, और ये rosette क्या है, this is the group of leaves, okay. और टफ्ट मतलब एक गुच्छा रूट्स का नीचे की तरफ उग जाता है, ठीक है। इस तरह ये अपने ऑफसेट से, ये जो लेटरल ब्रांच राइज हुई है, इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ये ऑफसेट आगे आगे फैलता जाएगा,
और उससे नए नए डॉटर प्लांट्स उगते जाएंगे। देखिए ये इसका पिट्यूल है, लीफ का जो डंडी होती है मैंने बताया था पिट्यूल है, इसका लीफ जो है इसका पिट्यूल बिल्कुल वो है रिड्यूस्ड है, ये सेसाइल लीव्स है, ठीक है, इनमें बिल्कुल पिट्यूल दिख नहीं रहा है ही नहीं। और यहाँ इशोनिया में ये स्वोलन पिट्यूल है, ठीक है, और ये स्वोलन पिट्यूल के ऊपर लीफ दिख रहा है आपको, राइट, पूरा ग्रुप है लीव्स का। ये लीफ का जो पूरा इसका मार्जिन होता है इसे क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना, ठीक है। देन स्वोलन पिट्यूल, लीफ लैमिना, पूरा ग्रुप इसका क्या कहलाएगा, रोजेट, राइट। और नोड से अराइज हुए हैं सारे लीव्स एक साथ, यहाँ से एक लेटरल ब्रांच निकली, उसने नेक्स्ट रोजेट को जनरेट कर दिया, ये लेटरल ब्रांच को कहेंगे ऑफसेट। समझ में आ गया, ठीक है जी। इनका स्टेम जो है स्पॉन्जी नेचर का होता है एंड दिस होल यू कैन से फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑफसेट, ठीक है। इशोनिया और पिस्टिया में जो स्टेम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू ऑफसेट्स, लेटरल ब्रांचेस ही हैं, ग्रो करती जाती हैं, आगे के नोड से और रोजेट बनाती जाती हैं, आगे आगे फैलती जाती हैं, बड़ी जल्दी ये पूरी वाटर बॉडी में फैल जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, ये हम पढ़ चुके हैं क्लैडोड के बारे में, ठीक है, ये दोनों ही जो है एरियल मॉडिफिकेशन थी स्टेम की। अब ये आ गई सब एरियल मॉडिफिकेशन सकर, ठीक है। सकर क्या होता है, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, इन तीनों में ऐसा होता है, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसमें सकर पाए जाते हैं। है क्या सकर, देखो आप कहोगे ये तो फिर वही है, देखिए ये मेन प्लांट है, इसमें से एक लेटरल ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, देख रहे हैं आप, ये लेटरल ब्रांचेस अराइज हुई, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, ये लेटरल ब्रांचेस ग्राउंड के नीचे से अराइज हुई हैं। देखिए इसमें जो स्टेम का ये तो एरियल पार्ट है, और ये नीचे इसका थोड़ा सा सब एरियल पार्ट है स्टेम का, दिस इज द एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम, दिस इज द सब एरियल पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप, अब हम यहाँ सब एरियल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो उसमें ये स्टेम के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से एक लेटरल ब्रांच अराइज हुई, कुछ समय तक तो जमीन के नीचे उगी, लेकिन फिर जमीन से ऊपर आ गई, देखिए जमीन से नीचे उग रही है ये ब्रांच, लेटरल ब्रांच, और फिर जमीन से ऊपर इमर्ज हो गई। तो जमीन से नीचे जो लेटरल ब्रांचेस उगती हैं, जो आगे जाके नया प्लांट बना देती हैं, दीज आर कॉल्ड सकर्स, ठीक है। ये लीफी शूट बना रही है प्लांट का, उसी प्लांट का नया शूट अराइज कर रही है। सो दिस इज अगेन अ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड इट इज देयर इन क्राइसेंथेमम। In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem. ये stem का base है जो underground हो गया है, ठीक है। And these lateral branches they grow horizontally beneath the soil, then come out of the soil obliquely. टेढ़ा होके ये बाहर आ जाती है, और उसके बाद they give rise to the leafy shoot of the plant. So it happens in banana, pineapple and chrysanthemum. This diagram is shown of chrysanthemum plant. क्योंकि ये अंडरग्राउंड लेटरल ब्रांचेस है, इसीलिए इनका नाम सकर है, ये अलग है बाकियों से, these are सकर, ठीक है। ये देखिए ये सब मैंने आपको अलग अलग दिखाए, ये सब मॉडिफिकेशन स्टेम की आपने पढ़े हैं, ये रनर पढ़ा, स्टोलन पढ़ा, सकर पढ़ा, ऑफसेट पढ़ा, ठीक है। ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है सब स्टेम की, ठीक है। चलिए आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। इसके बाद लीफ का जो पार्ट है उसको आई थिंक हम कल पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया आपके लिए आज रिवाइज करने के लिए, ऑल्दो आई हैड प्रिपेयर्ड द नेक्स्ट टॉपिक आल्सो फॉर यू, द लीफ, द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, बट आई थिंक टुडेज कंटेंट इज गुड इनफ फॉर यू टू रिवाइज and this is much for the day. So just revise the today's content and come up with the doubts if you have any, and study well. But before ending the session, I would like to give you some assignment for today's session. So here is the assignment, just 2 questions. बहुत सारा कंटेंट पढ़ा आज हमने, 2 ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनके बारे में आप पढ़िए। डिस्क्राइब मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ना मॉडिफाई कर लो, क्योंकि मैंने मॉडिफिकेशन से बहुत सारी आपको पढ़ाई है, आप इसमें एक वर्ड ऐड कर लो, डिस्क्राइब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। बाकी की नहीं करेंगे आप, सिर्फ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम की लिखेंगे। Describe underground modifications of stem with suitable examples and of course draw the diagrams also, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये कल का ही क्वेश्चन है, कल मैंने ये वाला दिया नहीं था आपको, एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट।
बेटा बनाना में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है शक्कर, उसमें भी ऐसे ही अंडरग्राउंड लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं जैसे मैंने यहाँ दिखाई थी आपको। ठीक है, बनाना में भी ऐसे ही लेटरल ब्रांच अराइज करती है और वो नेक्स्ट प्लांट नेक्स्ट लीफी शूट को अराइज करती है। लेकिन अगर आप उसका डायग्राम देखना चाहते हैं देन टुमारो आई विल स्टार्ट विद दैट स्लाइड ओनली। ठीक है, ओके ओके, सो दैट इज ऑल। अब आप इसको आज रिवाइज कीजिए, और असाइनमेंट में मैंने आपको आज सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन कल का है जो आपकी एनसीईआरटी में था, कल मिस हो गया था देना। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस रूट एंड एडिटिशियस रूट। ठीक है, ये डिफरेंस आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ एक वर्ड ऐड कर लीजिए आप, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, इट इज, ये एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी का ही ये भी क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक इट शुड बी मोर स्पेसिफिक, डिस्क्राइब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसको वर्ड को ऐड कर लो यहाँ पर। ओके, स्टडी वेल, thank you for being such enthusiastic students. You are attending the lecture in vacations and you are answering also very enthusiastically, and revise the content today and complete the assignment. Okay, study well. Okay, take care.